চারণভূমিতে অবৈধভাবে জমি দখল করে চলছিল বসবাস। রীতিমতো বাড়িঘর তৈরি করে বাস করত পরিবারগুলো। শুধু বাড়িঘর নয়, মসজিদ, ঈদগাহ, এমনকি স্কুলও তৈরি করা হয়েছিল এই জায়গায়। আর সবটাই হয়েছিল সরকারি জমি দখল করে। তবে এবার অ্যাকশন নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একেবারে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হলো সবকিছু। আর সেই ছবি দেখলে রীতিমতো চমকে উঠবেন। তবে এখানে কথা হচ্ছে আসামের। আর যে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে তিনি হলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সরকারি ও সরকারি জমির দখল অপসারণের চলমান প্রক্রিয়ায় অংশ হিসেবে লখিমপুর জেলার 3টে স্থানে উচ্ছেদ অভিযান চালালো অসম সরকার। জেলার গ্রাম চারণভূমি সংরক্ষণ এলাকায় বসবাসকারী লোকেদের নোটিশ জারি করার কয়েকদিন পরই মুসলিমদের 300টিরও বেশি বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। যেসব এলাকায় এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে সেগুলো হলো খ্রিস্টান চারণভূমি, দেবেরা চারণভূমি এবং ফুকনারহাট চারণভূমি। সেই সমস্ত এলাকায় পশুপালনের জন্য সংরক্ষিত জমি দখল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। উচ্ছেদের আগে আসাম ভূমি ও রাজস্ব আইনের পাট্টা বিধির 18(2) এবং 18(3) নম্বর ধারার অধীনে 300টিরও বেশি পরিবারকে নোটিশ দেওয়া হয়। দখলদাররা প্রায় 300 বছর ধরে চারণভূমি সংরক্ষণ এলাকায় বসবাস করে আসছে। এলাকার মসজিদ, ঈদগাহ মাঠ এবং স্কুল তৈরি করেছিল তারা। এই বিষয়ে উচ্ছেদ অভিযানে উপস্থিত থাকা এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, বন দফতর আগে থেকেই মানুষকে নোটিশ দিয়ে রেখেছিল। আসাম পুলিশের নিরাপত্তা এখানে দেওয়া হয়। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতাও পাওয়া গিয়েছে। উচ্ছেদ অভিযান প্রায় শেষ, এখনো পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি। আসুন শোনাই কি বলছেন ওই পুলিশ আধিকারিক, শুনুন। आज का ये इविक्शन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लानिंग करके पहले से नोटिस दे रखी थी लोगों को जिन्होंने अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे थे, और उसके हिसाब से जो है स्ट्रक्चर्स को आज डिसमेंटल किया गया है। और असम पुलिस और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लोकल लोगों का भी कोऑपरेशन यहाँ पे मिला, क्योंकि फॉरेस्ट में इस टाइप का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कोई चाहता नहीं है। तो आज का इविक्शन का जो स्टेज था ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है और कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई नहीं है। सर, एनएसएन के ने कोई प्रेस रिलीज इशू किया था, जैसे रेंगमा उन लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन लोग का अंडर में आता है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे आर्म्स लेकर उन लोग मूवमेंट का वीडियो भी भेजा था। आर्म्स मूवमेंट असम टेरिटरी में कोई इस टाइप का कहीं किसी से रिपोर्ट नहीं हुआ है हम लोगों को। बाहर कहीं कोई क्या करता है वो इतना हम लोगों का कंसर्न नहीं है, बट असम लैंड में कहीं कोई इस टाइप का आर्म मूवमेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक। और हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के लिए प्रोविजन करना चाहिए वो हम लोगों ने कर रखा है। सर, पब्लिक के बारे में, पब्लिक तो डर रहा है इसके बारे में, एनएसएन मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर। पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है कोऑपरेशन पूरा है। और रादर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं नागालैंड के, उनके साथ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि पूरे कोऑपरेशन के साथ चलाया जाएगा। उसी के साथ फुल कोऑपरेशन के साथ चल रहा है। यहाँ तो कोई इस टाइप का जो है झमेले वाली बात नहीं है। जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, उनको थोड़ा ही जाना चाहिए, वही काम हो रहा है। सर, आज एबेक्सो में कौन कौन डिपार्टमेंट इसमें जोड़ा था? बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लीड कर रहा है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट, और बाकी सब लोग इसमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप लोग आसाम कमांडो भी था? ये डिटेल देना ठीक नहीं है। जितना सिक्योरिटी के लिए जो जरूरत है हमने किया है। ठीक है, थैंक यू। এদিকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন, এটা বেঁচে থাকার সংগ্রাম। আমরা অবৈধ বিদেশিদের কাছে ভাড়া দেব না, অবৈধ বিদেশিদের কাছে কোনো জমি বিক্রি করব না, সরকারি জমিকে দখল হতে দেব না। ভবিষ্যতে যদি কোনো সরকারি জমি দখল হয় তাহলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শোনা যাক কি বলছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, শুনুন। আমি জীয়াই থকাৰ বাবে আমি আকৌ এবাৰ সংগ্ৰাম কৰিম। সেই সংগ্ৰাম হাতত অস্ত্ৰ লৈ কৰা সংগ্ৰাম নহয়, সেই সংগ্ৰাম আমাৰ স্বসংকল্পৰ সংগ্ৰাম। আমি কোনো মাটি অচিনাকি লোকক বিক্ৰী নকৰো, কোনো ঘৰ অচিনাকি লোকক ভাড়া নিদিও, আৰু চৰকাৰী মাটিক আমি বেদখল হ'বলৈ নিদিও। মই চৰকাৰৰ বিষয়াসকলক আহ্বান জনাম, ভৱিষ্যতে যদি এটুকুৰা চৰকাৰী মাটিও বেদখল হয়, জিলাৰ আয়ুক্তসকলে নিজে সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব। মই আজিৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসমৰ ব্যুৰক্ৰেচিক আহ্বান জনাম, কম্প্ৰমাইজ আমি মানি নলওঁ। আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখতে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি যেতিয়া বেদখলকাৰীসকলে দখল কৰি লৈছিল, আপোনালোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছিলে। আজি মই অসমৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক আহ্বান জনাম, কাৰ্যালয়টো কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। অন্যদিকে এই বিষয়ে এআইইউডিএফ নেতা রফিকুল ইসলাম বলেন,
অসমের মুখ্যমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে মিথ্যে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে তার মুখে এই কথা মানায় না। নিজের গদি যখন নড়ছে তখন মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর জানা উচিত, যখন দেশভাগ হচ্ছিল তখন এই অংশ পাকিস্তানে যাচ্ছিল, কিন্তু অসমের সেই সময়ের মুসলমান এমএলএরা ভোট দিয়ে বলেছিলেন এই অংশ ভারতে থাকবেন। তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কি বলছেন রফিকুল ইসলাম, শুনবো সেটাও। आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा स्वतंत्रता दिवस में जो उनका स्पीच है उसमें इतने बेशर्मी के साथ झूठ बोल गए और कई चीजें ऐसी बातें की जो उनको इस कुर्सी से बैठ के इस तरह की बातें शोभा नहीं देता। एक तो अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि यहाँ जो डेलिमिटेशन हमने किया है 50 साल के लिए हमने यहाँ के जो इंडिजिनियस है उनके लिए आसाम को सेव कर दिया, ये किया वो किया, फला किया ढला किया, ये कह रहे थे। अभी लोगों को डरा रहे हैं, जब उनकी कुर्सी हिल रही है अब लोगों को डरा रहे हैं कि ये जो 15-20 साल के बाद आसाम में कोई अननोन मुख्यमंत्री होगा, कोई संदेहजनक नागरिक यहाँ मुख्यमंत्री होगा। ये बेशर्मी के साथ इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री को खुद मालूम होना चाहिए कि इंडिया का जब पार्टीशन हो रहा था आसाम का ये रीजन पाकिस्तान में जाने वाला था, लेकिन ये आसाम के उस टाइम के जो मुसलमान एमएलएस थे, मतलूब रहमान मजूमदार और उनके कई साथी, ये लोग ने वोट डाला कि नहीं आसाम का ये रीजन जो है इंडिया में रहेगा, ये पाकिस्तान में नहीं जाएगा, तब जाके आसाम रह गया। तो आसाम को जिस वक्त बचाने वाले, जिसको पाकिस्तान से छीन के इंडिया में रखना था, उस वक्त ये मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं है क्या? हाँ, उस टाइम ये गोपीनाथ बरदोली बोलिए और कई साहब बोलिए, लेकिन अगर मतलूब रहमान मजूमदार और उनके कई मुसलमान एमएलए साथी अगर पाकिस्तान में पक्ष में वोट डालते तो आसाम का ये रीजन पाकिस्तान में होता। लेकिन हमारे फोरफादर्स आसाम के उसी टाइम के मुसलमान एमएलएज ने पाकिस्तान के साथ जाना पसंद नहीं किया, आसाम के इस रीजन को इंडिया में रखना चाहा और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट डाला और आज आसाम इंडिया में है, वरना आसाम पाकिस्तान में होता। और ये हमारा ये आसाम का आज के चीफ मिनिस्टर जो है, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो रफीकुल इस्लाम जैसे देशभक्त जिनके फोरफादर्स ने आसाम को इंडिया में रखने के लिए ऑलरेडी हिस्ट्री में नाम दर्ज कराया, आगे भी जरूरत पड़ेगी हम ही करेंगे। और ये हेमंत बिश्व शर्मा साहब क्या करेंगे, ये दुम दबा के भागेंगे, ये भागेंगे। ये চারণভূমিতে অবৈধভাবে জমি দখল করে চলছিল বসবাস, রীতিমতো বাড়িঘর তৈরি করে বাস করত পরিবারগুলো। তবে শুধু বাড়ি নয়, মসজিদ, ঈদগাহ, এমনকি স্কুলও তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। আর তারপরে অ্যাকশন নিলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।